Class 12th Commerce, subject Accountancy, chapter number it is 1, Financial Statements of Not-for-Profit Organizations, lecture number 1. Meaning and concept of not-for-profit organization. See, a not-for-profit organizations, they are also known as non-profit organizations. These organizations have their objectives to further cultural, they can be further means rather than money. Money के सिवाय में cultural, educational, health, religious, public services, etc. Not with the purpose of earning profit. See, the aim of not-for-profit organizations is never ever to earn profits. Rather than they give services, and they can be cultural, educational, health, religious, public services, etc. Examples of such organizations, they are colleges, public hospitals, literary societies, schools, Society for Promotion of Sports, Arts and Culture, social welfare organizations, clubs, etc. See, they all are the names where these non-profit organizations, they do work. They are the schools, colleges, public hospitals, literary societies, Society for Promotion of Sports, and so on. Many names are there. I have told you many names. Characteristics of not-for-profit organization. Now see, let us move on to the characteristics. See, characteristics are features also, so do not be confused. First number, entity. Not-profit organization, it is a legal entity and it is separate from its promoters. It means when once any NPO, non-profit organization, has been set up, there can be any promoters. When those promoters, they leave the organizations, it does not mean that that organization also will be it will be wound up. No, there will be no winding up of that organization. Other promoters, they will come, other members, they will come, and they will take care of the organization. They will work for the organization. Point number 2, purpose. Its purpose is to give different type of satisfaction, different type of activities rather than earning money. Its purpose is to further cultural, educational, religion, then religious, we can say, professional objectives, and rendering services to people at large. When the matter is of non-profit organization, in nowadays you can see that there are so many organizations, those who are helping the mazdoor, those who are प्रवासी भारतीय जिसको बोला जा रहा है, उन लोगों की मदद के लिए, again they all are working for non-profit organization. It is also the example. Third number, ownership. It is a setup of charitable society or trust. देखिए, it is not owned by an individual. देखिए, ownership में फिर वही बात आ गई that it is not owned by anyone. जिसने बनाया उसका नहीं है. It is of everybody because it belongs to society. Ownership. It is a setup of charitable society or trust. It is not owned by an individual or group of individuals, but it belongs to the whole society. As we can see, so many, there can be libraries, swimming pools, mandir, temples, and so on. Fourth number, profit. Profit is not the objective. Not-for-profit organizations of not-for-profit organization, it does not function with the objective of earning money, but it does not mean that it cannot earn money. It cannot earn profit, not money. It cannot earn profit. See, as I have taught you before also in the chapter, when we prepare income and expenditure account, then we get surplus.
See, surplus profit ही तो है बेटा, but profit name is not given, it will never be given when you are preparing the accounts for a non-profit organization. They don't earn profit, rather than profit it is termed as surplus. वो बात नहीं है कि वो लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे, बट वी कैन नॉट राइट प्रॉफिट, इट इज टर्म्ड एज सरप्लस. बट बेसिकली दीज ऑर्गेनाइजेशंस are not to earn profits. Keep this thing in your mind. Surplus is necessary to maintain its assets and also operations. There are so many activities, so many operations which a non-profit organization operates. For all those activities, for all these things, they need money. Also, they people have assets. So all the expense for maintaining that asset, for doing all the operations, they need some money, and that money is got from surplus. Surplus is used for the objectives for which it is set up and is not distributed among its members. इधर देख लीजिए, अपने जो मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता सरप्लस का पैसा, रादर देन दे स्पेंड दैट मनी for the maintaining of assets and doing all those objectives. Fifth number, management. Not profit organization is managed by a group of individuals. They are called trustees or managing committee. It means they have management definitely, but their management does not aim at earning profit. Sixth number, funds. From where do they get money? See, funds for its operations are given by its members and donors as entrance fee. देखिए किस रूप में उनको पैसा मिलेगा. It will be entrance fees, membership fees, subscriptions, donations. It is supplemented by surplus from operations. It is also supplement माने हेल्प कर रहा है. अपनी ऑपरेशन से जो उनको सरप्लस हो रहा है वो पैसा उनको मिलता है. They get money in the name of entrance fees, membership fees, subscriptions, donations. So they all are the examples of funds from where do they get money. कहाँ से इन लोग को पैसा मिलता है. It can be entrance fees, membership fees, subscription, donations. Also they get surplus from their operations. 7 number, financial statements. It prepares its financial statements every year, which includes receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. These are the financial statements that a non-profit organization maintains. Funds received by a not-for-profit org. See, अभी देखिए, the names are written from where can a non-profit organization get money. They are the ways to get money, to get some income. And now see, funds received by a not-for-profit organization, they can be A number, donations. Donations, they are of two types. If it is a specific donation, it will be written in closing balance sheet liabilities. If it is general donation, it also depends on amount. If a normal amount has been got in the name of donation, it will be written in income and expenditure account credit side. Some specific donations, they are written on closing balance sheet liability. जो हमारी specific donation होगी उसका पैसा वहां जाएगा. B number, membership fees और entrance fees. For नहीं है, it is or. Membership fees और entrance fee. C number, subscriptions. D number, loans. E number, grants from government and other institutions. Now see, first of all, I am moving on to the subscription. This is the most important part for the calculation, for understanding, for everything. Listen, how will this subscription be treated? First of all, whatever amount is given to you in receipts and payment account, that amount will be taken. Subscriptions received during the year, see on the top it is written. Add
subscription outstanding at the end means current year outstanding will be added, the same is done, you can see. एंड प्रीवियस ईयर का जो एडवांस में पैसा आपने लिया है, बिगिनिंग को हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, ध्यान रखिएगा. बिगिनिंग ऑफ द ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर एडवांस. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस, एंड दिस अमाउंट विल बी एडेड इन द अमाउंट व्हाट इज गिवन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन डेबिट साइड रिसीविंग. उस पैसे में इन दोनों को जोड़ दिया. Now subscription outstanding in the beginning of the year. अब ये देखिए प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग माने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया. एंड इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड में हम लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए. सो दिस अमाउंट ऑल्सो फॉर सब्सक्रिप्शन दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस current year advance minus and previous year advance plus. Whatever the result you get, it will be written in income and expenditure account in subscriptions in credit side. And when nowadays CBSE is really demanding for subscriptions account. It is also very simple. Debit side में देखिए, to outstanding subscriptions account. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग माने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपने लिख दिया. उसके बाद में अगेन मूव ऑन टू डेबिट साइड. टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज द बैलेंसिंग फिगर. टू सब्सक्रिप्शंस अकाउंट एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड का जो एडवांस है वो आपने लिखना है डेबिट साइड में. देन नाउ मूव ऑन टू क्रेडिट साइड. एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का मतलब हो गया आपका इट इज द प्रीवियस ईयर. एडवांस प्रीवियस ईयर का क्रेडिट में है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का डेबिट में है. एंड देन सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय बैंक, दिस अमाउंट यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड. बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड, यानी कि ये हो गया आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग. एंड माने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ गया आपका क्रेडिट में, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आ गया आपका डेबिट में. अब ये देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग माने प्रीवियस ईयर एडवांस आ गया आपका क्रेडिट में, और करंट ईयर एडवांस आ गया आपका डेबिट में. कीप द वन थिंग इन योर माइंड कि क्रेडिट साइड आपकी हमेशा ज़्यादा रहेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द अमाउंट टू बी रिटर्न इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. डेबिट में लिखा है देखिए बैलेंसिंग फिगर है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस अमाउंट विल बी रिटर्न इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय सब्सक्रिप्शंस के नाम से पैसा वहां पर में बिल लिखेंगे. This account you will prepare when the question is asking to prepare. Otherwise, when you will not prepare this. I have taken one question. Now see. Following is the information relating to the subscriptions of Savera Club for the year ended 31st March 2016. Now see. Subscriptions received during the it is 15-16, during 15-16 70,000 है. Subscriptions outstanding on 31st March 2015 ये 17,000 है. Subscriptions received in advance, अभी देखिए 15 आपका प्रीवियस ईयर हो गया. Subscriptions received in advance on 31st March 2015 3,250. Subscriptions received in advance on 31st March 2016 it is 4,670. Subscriptions outstanding, this is current year's outstanding, on 31st March 2016 is 11,250. Show the subscription in income and expenditure account for the year ended on 31st March
2016 and in opening and closing balance sheets. Amount is given to you and it will be shown in income and expenditure account, in opening balance sheet and in closing balance sheet. And now see, it is the solution of the question. Buy subscriptions 70,000. क्वेश्चन इज जस्ट स्ट्रेट, एकदम सीधा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा मुश्किल बात ही नहीं है. लेस हुआ देखिए 17,000. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया. 2015 एंड 2016. 2016 इज करंट ईयर, 2015 इज प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 17,000 माइनस. आफ्टर दैट करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 31st March 2016, it is current year. Current year outstanding, it has been added, see 11,250. After that previous year का एडवांस माइनस हो गया और करंट ईयर का एडवांस प्लस हो गया. प्रीवियस ईयर एडवांस सी 3,250 प्रीवियस ईयर एडवांस माइनस हो गया. Received in advance on 31st March 2016, it is. Now see, एक बार और देखिए. 2000 रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च. एडवांस रिसीव हुआ है प्रीवियस ईयर का. देखिए प्रीवियस ईयर का एडवांस इज फॉर करंट ईयर 3,250. इट हैज बीन एडेड, नॉट सब्ट्रैक्टेड. आफ्टर दैट जो हमारा करंट ईयर का एडवांस है वो तो माइनस ही होगा, क्योंकि करंट ईयर का एडवांस हमारा अगले साल के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए है. इट मीन्स दिस अमाउंट इज फॉर 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017. दोबारा देखिए एक बार. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है आपका 31 मार्च 2016. 11,250 हैज बीन एडेड. प्रीवियस ईयर एडवांस माइनस प्रीवियस ईयर है आपका 2015. 31 मार्च 2015 प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया. अब प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एडवांस इज फॉर करंट ईयर और करंट ईयर हमारा चल ही रहा है. ऐड कर दिए. देखिए जो हमारा एडवांस है प्रीवियस ईयर का, दैट विल बी एडेड. 31 मार्च 2015 इट इज प्रीवियस ईयर एडवांस ऐड हो गया 3,250 प्लस हो गया. अब करंट ईयर एडवांस इट विल बी माइनस 4,670 माइनस हो गया. रिजल्ट आया हमारे पास में 62,830. आगे बढ़ते हैं. अब आइए आप इसके सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर. अभी बिल्कुल डिस्कस किया था मैंने. द फॉर्मेट आई हैव गिवन यू, उस फॉर्मेट को बहुत ध्यान से आपने याद भी करना है, देखना भी है. बाय बैलेंस बीडी देखिए ओपनिंग बैलेंस इज एडवांस ऑन मार्च 31. ये है आपका प्रीवियस ईयर का एडवांस 3,250. ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट में. अब बीडी माने ओपनिंग बैलेंस. प्रीवियस ईयर का जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसका बैलेंस आ गया बीडी डेबिट में 17,000. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 70,000 क्वेश्चन में आपको गिवन है, बिल्कुल आपने लिखा. अब देखिए एडवांस आउटस्टैंडिंग जो हमारा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो आएगा क्रेडिट में, बिल्कुल हमने लिखा. देखिए बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016. इट मीन्स ये आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 11,250. अब कैरी डाउन में यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए जरा. ऑन डेबिट साइड सी एडवांस ऑन 31 मार्च 2016. नाउ सी ये आपका करंट ईयर एडवांस है. करंट ईयर एडवांस आ गया आपका डेबिट साइड में, और जो बैलेंसिंग फिगर है 62,830 इसको आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में. नाउ मूव ऑन टू ओपनिंग बैलेंस शीट में. देखिए ओपनिंग आइटम्स आएंगे, क्लोजिंग आएंगे ही नहीं. इसमें जो 15 से कनेक्टेड है सारा, दैट ऑल यू विल राइट हियर. सी
सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एन एसेट। डेबिट में लिखा है, डेबिट बोल रही हूँ, एसेट्स में लिखा है, नॉट डेबिट साइड, इट इज ऑन एसेट्स साइड। दोबारा देखिए, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, यानी कि जब हम 15 की बैलेंस शीट बना रहे हैं और ये मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है, वो एसेट है, इट इज रिटन इन एसेट साइड 17,000 एंड सी। अब आपने 15 में एडवांस भी ले लिया, जो 15 में एडवांस लिया है करंट ईयर इज गोइंग ऑन, और करंट ईयर का एडवांस हमेशा लायबिलिटी में जाता है। द सेम थिंग हैज बीन डन, इट हैज बीन रिटन ऑन द क्रेडिट बोर्ड लायबिलिटी साइड। In liability side, subscriptions received in advance, it is written 3,250। अब आ जाइए आप लोग, दिस इज द बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग 11,250। अब आपने 16 में भी एडवांस लिया है। देखिए, जिस भी साल में आप एडवांस ले रहे हैं कमिंग टाइम के लिए, for that particular year this money will be written in liability side। see, liabilities में आपने लिख दिया subscriptions received in advance 4,670। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सी एनुअली माने एक साल में एक बार। Not for profit organizations prepare annual accounts showing the financial transactions of the organizations for its members। देखिए, अपने मेंबर्स को वो बिल्कुल दिखाएंगे whatever the transaction they did, जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किया फाइनेंशियली, पैसे से कनेक्टेड, that all will be recorded in annual accounts, final accounts, कुछ भी बोलिए, and that will be shown to their members। comply माने, और वो उन बातों को मान रहे हैं जो भी स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, they are obeying them। and to comply with, comply माने आप उनको जो भी गवर्नमेंट बोल रही है आपको how to maintain the accounts, you are complying with those all statutory requirements। financial statements of नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट नंबर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड नंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड नंबर इट इज बैलेंस शीट। एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। पहले ये समझिए, नेचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वी रिकॉर्ड ईच एंड एवरी आइटम, चाहे वो आपका रेवेन्यू है, चाहे वो आपका कैपिटल है। रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल इनकम, ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इट वर्क्स एज कैश बुक। All receivings are recorded on the debit side, all payments they are recorded on the credit side। Receipts and payments account is a summary of cash including bank receipts and payments during an accounting period। Receipts and payments being shown under appropriate heads of the account। एकदम नहीं भूलेंगे आप कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का नेचर है रियल अकाउंट का। इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, कैपिटल और रेवेन्यू, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, कैपिटल और रेवेन्यू। नाउ सी, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब ये देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो शुरुआत होती है, जो उसका ओपनिंग बैलेंस रहता है, इट रिमेन्स मोस्टली इन डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस बीडी में हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश एट बैंक।
अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो आ जाएगा आपका बाय बैलेंस बीडी में। इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो डेबिट साइड में आइए, टू सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर होता है, देखिए प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शंस का ऑल ईच एंड एवरी। और देखिए इसको हम तैयार करते हैं साल के लास्ट में, जहां लिखा है टू सब्सक्रिप्शंस इट मीन्स के प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का कितना कितना हमें सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुई है। प्रीवियस ईयर इज ओपनिंग ईयर, करंट ईयर रहता है आपका क्लोजिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर रिमेन्स नेक्स्ट ईयर। टू जनरल डोनेशंस, स्पेसिफिक डोनेशंस, इफ इट इज रिटर्न दैट स्पेसिफिक डोनेशंस को, जो हमारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब डोनेशंस आ जाएंगे बेटे, चाहे वो आपकी जनरल है चाहे स्पेसिफिक है। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, टू एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल ग्रांट्स, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, ग्रास एक्सेट्रा, टू सेल ऑफ ओल्ड और यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इनकम है डेबिट में आएगी। टू डिविडेंड्स क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, बाय सैलरी खर्चे सारे डेबिट आ गए देखिए, बाय रेंट, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस, बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बाय न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एक्सपेंसेस एक्सेट्रा जो भी खर्चे हैं उनके, बाय रिपेयर्स, बाय ऑडिट फीस, बाय मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, बाय इंश्योरेंस, बाय ऑनरेरियम, बाय म्युनिसिपल टैक्स, बाय प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय एक्सपेंसेस ऑन शो। अब देखिए फिर से कॉन्टिन्यूड है बेटा, ये भी आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नाउ कॉन्टिन्यूइंग। टू रेंट रिसीव्ड, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये देखिए कैपिटल इनकम है बेटे, जो लाइफ मेंबरशिप फीस है हमारी कैपिटल इनकम है, रेंट रिसीविंग हमारी रेवेन्यू इनकम है, इंटरेस्ट का रिसीविंग रेवेन्यू इनकम है। स्टिल सी इट इज रिटर्न इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड, द सेम आई टोल्ड यू, भी मैंने आपको बताई थी यही बात। लीगेसीज अगेन देखिए ये आपका कैपिटल नेचर का एक इनकम है। लीगेसीज चाहे वो जनरल है चाहे स्पेसिफिक है, दे ऑल आर इन द नेचर ऑफ कैपिटल इनकम। एंडोमेंट फंड कैपिटल इनकम, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टू रिसिप्ट्स ऑफ स्पेसिफिक फंड्स, मैच फंड, प्राइज फंड, मतलब जो भी रिसीविंग है आपका, चाहे कैपिटल है चाहे रेवेन्यू है, इट इज रिटर्न ऑन डेबिट साइड। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग है, ओपनिंग होती है हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट से या कैश एट बैंक से, क्लोजिंग भी ऐसे ही होगा बेटा। ओपनिंग जो हमारा था बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में लिखा था, क्रेडिट में लिखा था, नॉट डेबिट, दैट वाज रिटर्न इन क्रेडिट साइड। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का, दिस विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। अब क्रेडिट पर आ जाइए, बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब ये देखिए यहाँ पर आपने परचेज किया है फिक्स एसेट को, और यहाँ पे हमने बिल का खर्चा भी किया था, बिल का पेमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इनको हमने कहाँ रिकॉर्ड किया है, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। द सेम आई टोल्ड यू दैट द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, इसको हम जो इसका जो नेचर है रियल अकाउंट है बेटे। डेबिट व्हाट कम्स इन में सारा डेबिट में हो गया, वट एवर गोज आउट सारे का सारा क्रेडिट में हो गया। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट्स, बाय बुक्स, बाय लोन का जो रीपेमेंट है, बाय बिल्डिंग्स। अब ये देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में था कैश बैंक का, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आ गया कैश बैंक का। ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट में था, अब क्लोजिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का डेबिट में आ गया। सो दीज ऑल थिंग्स आई हैव रिटन, मैक्सिमम आइटम्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। If you pay all heed, if you do all these things with whole care,
then definitely this chapter is very simple, there is no doubt. बहुत आसान लगेगा आपको ये चैप्टर अगर आप इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे. अब ये देखिए, सी आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, वन क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल, कुछ भी बोलिए. अब इससे आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर receipts and payment account of Friends Club Delhi for the year ended 31st March 2020. Cash balance as on 1st April 2019. See, this is the opening balance of cash. When you prepare a receipts and payment account, it will be written on the debit side. और देखिए वही लिखा हुआ है बेटा, सब्सक्रिप्शंस, इनकम. रियल अकाउंट का बेस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेचर रहेगी आपकी. रियल अकाउंट की डेबिट में आ गया, देखिए 3,76,000. डोनेशंस डेबिट में आ गई 80,000. एंट्रेंस फीस इट इज इनकम 43,000 डेबिट में आ गया. रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम द क्लब हॉल 52,500. रेंट रियलाइज का माने रेंट मुझको मिला. 52,500 डेबिट में, रिसीविंग डेबिट में आएगी. इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा है, एक्सपेंस है, क्रेडिट में आ जाएगा 34,400. टैक्सेस कुछ लिखा नहीं है, स्टिल इट इज एज्यूम्ड कि टैक्स हमने पे ही किया होगा. मिलता नहीं, टैक्स इज नेवर रिसीव्ड लाइक दिस. इट इज द पेमेंट 5,000 क्रेडिट में आया. सैलरीज एंड वेजेस पेमेंट है, क्रेडिट में आ गया. देखिए 2,15,000. और ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, secretary visited to my place, to my organization, to my friends club. और जो खर्चा हुआ उनके आने पर that was 25,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट है, बिल्कुल इनकम आपका आएगा क्रेडिट साइड में. सी इट इज द रिसीविंग. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नियम है दैट इज बेस्ड ऑन रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन, डेबिट में आ गया 29,500. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू खर्चा है बेटे, रेवेन्यू खर्चा है, इसको हमने लिख दिया क्रेडिट में. बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500. बाय पैटी एक्सपेंसेस रहे खर्चा है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि इसे आपको क्रेडिट में लिखना होगा 9,000. देन बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 3,100 का पेमेंट हो गया. एंड सी इसमें क्या रहेगा बेटे, डेबिट साइड विल बी मोर, क्रेडिट विल बी लेस. एंड सी बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, बिल्कुल ध्यान से रखिए. अगर आप इफ यू कीप ऑन ओबेइंग माय इंस्ट्रक्शंस देन डेफिनेटली nobody can stop you from getting good marks. Good nahi, best marks. Now see features of receipts and payment account. First number, nature. Its nature is real account. बिल्कुल मैंने अभी भी आपको बताया when I was teaching the illustration that the nature of receipts and payment account is real account. उनका जो nature है वो real account है. It being a summary of cash receipts and cash payments. It being माने है ये क्या है, a summary of cash receipts है और cash payment है, including bank balance full form. बैंक बैलेंस भी आएगा, बैंक बैलेंस, that's it. Second number, basis of the preparation of accounting transactions and events which have been received और पेड इन कैश आर शोन इन दिस अकाउंट. देखिए जो हमने जो भी पे कर दिया या रिसीव कर लिया वो सारा है इसमें हमारा. देखिए अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, जो पैसा मुझे मिल गया, आई एम डिस्कसिंग द मनी दैट हैज बीन रिसीव्ड. अक्रूड, अनअर्न्ड, ये सारे का सारा इसमें नहीं था. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पिछले साल का पैसा आई एम गेटिंग मनी, चाहे वो आज का मेरा आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर का पैसा मुझे मिल रहा है, प्रीवियस ईयर का मिल रहा है, मीन्स आई एम रिसीविंग मनी इन कैश.
थर्ड नंबर देखिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वेदर दे आर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। बिल्कुल हमने यही किया। एंड वेयर वाइल आई वाज टीचिंग यू द इलस्ट्रेशन I kept on explaining in detail that in receipt and payment account each and everything has been recorded. It can be revenue expense, revenue income. It can be capital expense, it can be capital income. It all is always recorded in the debit side of receipts and payment account. Point number 4. Period. It records all cash and bank transactions whether it relates to current year or next accounting period। ये आपने भी देखा होगा कि जो समय हम लेके चलते हैं वो हमारा चाहे करंट ईयर हो चाहे हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हो, बिल्कुल हम बैंक बैलेंस को लेकर के चलते हैं। बिल्कुल। पीरियड इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वेदर दे आर ऑफ current year or previous year or next accounting period. Fifth number point, opening and closing balances. Opening balances to this account shows cash in hand or cash at bank in the beginning of the accounting period, and closing balances, see even illustration I taught you the same, and closing balance shows cash in hand or cash at bank at the end of accounting period। दोबारा देखिए, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस आता है रिसिप्ट पेमेंट के डेबिट में, और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर के रूप में मिल जाता है। कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Adjustments. Adjustment for outstanding expenses, accrued income or income received in advance, depreciation, these all adjustment they are not made in this account. It is a totally based on cash basis of accounting. हम बिल्कुल कैश बेसिस को लेके चलते हैं बेटा। इसमें कोई भी हमारा अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, रिसीविंग इन एडवांस, इफ यू हैव नोटिस्ड, तो हम इन चीजों को लेकर के चलते ही नहीं। इट मीन्स दीज, और ऐसा नहीं है कि कहीं जाएंगे ही नहीं, बट दे विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नो एडजस्टमेंट इज एडजस्टेड, ओनली द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एडजस्टेड, इट इज ओनली रिटन। 7 नंबर देखिए, पर्पस। द पर्पस इज टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। देखिए डिफरेंट हेड का मतलब क्या है, फंड्स को हमने रिसीव किया, बिल्डिंग को हमने खरीदा, बुक्स को हमने खरीदा, बिजली का बिल दिया, फोन का बिल दिया। सो दे ऑल आर द पर्पसेस, दीज ऑल डिफरेंट पर्पसेस, दे आर शोन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सारा डेबिट, जो वट एवर इज द रिसीविंग, that is on debit side. Whatever is the payment, that all payment is on credit side. When the account is started, that is started with balance, cash in hand or cash at bank with opening balance, और ये अकाउंट हमारा क्लोज होता है with closing balance of cash in hand or cash at bank. Income and expenditure account. See, first of all, move on to the format of income and expenditure account. 2 salaries, current year outstanding plus previous year outstanding minus। देखिए नेचर जो है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो नॉमिनल है, नॉमिनल। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारी इनकम। 2 salaries, current year outstanding plus previous year outstanding minus 2 rent, 2 इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड माइनस हो जाएगा बिल्कुल, 2 ऑडिट फीस। सी ऑल द एक्सपेंसेस आर रिटन ऑन द डेबिट साइड। ऑडिट फीस, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2 ऑनरेरियम, 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस, 2 repairs, 2 depreciation, 2 loss on sale of fixed assets. See, we never write the amount of sale of fixed assets in income and expenditure account, but we record loss or profit on sale of fixed assets. 2 sports materials used
If credit side is more, definitely you will get surplus. Excess of income over expenses means income ज़्यादा है, खर्चा हमारा कम है. Now move on to the credit side of income and expenditure account. By subscriptions, this amount you will get from, जो main amount है, that amount you will get from receipts and payment account. Current year outstanding plus previous year outstanding minus current year advance minus previous year advance plus the same, the four things they are done the same as I have taught you. Income आ जाएगी बेटा by entrance fees or by admission fees. By general donations they will be written. By legacy donation general होना चाहिए, general. By sale of old newspapers. By rent. By gain profit on sale of fixed assets. By sundry receipts. By deficit. Excess हो गया expenditure का, नुकसान हो गया deficit हो गया. But this will not be distributed in any person's account. जो भी पैसा फायदा नुकसान का है, that is of only that particular organization. Now see, it is the question. From this question, you have to prepare income and expenditure account. Fees collected including 80,000 for the previous year, it is 3,80,000. Fees outstanding है 10,000. Salary paid including 3,000 for the previous year. Salary outstanding at the end of year. Entertainment expenses 3,000. Tournament expenses 12,000. मीटिंग के खर्चे 18,000 है. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 6,000 है. परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 90,000 फॉर द बुक्स परचेज, यानी कि ये जो 19,000 का है आपने करंट ईयर में खरीदा है, क्वेश्चन को देख के लग रहा है. इट इज टोटल 29,000. रेंट पेड 10,000. पोस्टेज एंड टेलीफोन्स 15,000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000. डोनेशन जो रिसीव हुआ है दैट इज ऑफ ₹20,000. अब ये देखो बेटा, and now the income and expenditure account, it is made ready. See, on debit side all the expenses they are recorded. 2 salaries 28,000. Entertainment expenses 3,000. Tournament expenses 12,000. Meeting expenses 18,000. Rent 10,000. Traveling expenses 6,000. अब ये देखो बेटे, सी बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 29,000 में से 19,000 बिल्कुल माइनस होना ही था वो तो. एंड नाउ सी पीरियोडिकल्स में इस देखिए जो आपकी किताबें हैं, बुक्स बेटे एसेट्स का हिस्सा है. बुक्स एंड पीरियोडिकल्स और परचेज ऑफ बुक्स उन्होंने बोला है कि किताबें हमने 19,000 की खरीदी है. अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ बुक्स इट इज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हैंस इट विल नॉट बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वो हमने माइनस कर दिया, 10,000 लिख दिया आपने माइनस करके. पोस्टेज एंड टेलीफोन्स 15,000. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000. नाउ मूव ऑन. फीस 1,80,000. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग फीस हमारी प्लस हो गई, और जो हमारा बिगिनिंग का मतलब है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग वो हमारा माइनस हो गया. डोनेशंस आपके पास 20,000 की थी. अब यहां देखिए आपको सरप्लस मिल गया, यानी कि क्रेडिट इज मोर एंड डेबिट इज लेस. 2,26,000. रिसीविंग ऑफ इनकम and revenue expenses to determine the surplus or deficit is prepared on accrual basis. बिल्कुल जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं दैट प्रिपरेशन इज डन ऑन अक्रूवल बेसिस. करंट ईयर जो है आपका नॉट करंट ईयर. सी प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, income receiving in advance, each and everything. It is in income and expenditure account, it is recorded on accrual basis. Therefore, revenue expenses for the accounting period they are taken, whether they are paid or not.
Revenue income for the accounting period is taken when it has been whether received or not. Accrual basis है बेटे, जिसपे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नॉन कैश एक्सपेंसेस दे आर ऑल्सो टेकन. नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब है कि एक्चुअली कैश इज नॉट पेड इफ यू बाय एनी फिक्स एसेट. चलिए एग्जांपल लेते हैं. आपने एक्टिवा खरीदी, 2 महीना आपने खरीदी फॉर 1 लाख एंड नाउ यू वांट टू सेल योर दैट एक्टिवा फॉर 1 लाख. सी, एक थोड़ा 2 महीना आपने तो 3 महीना चलाई भी तो ना गाड़ी, फिर आपको द सेम अमाउंट यू कैन नॉट रिसीव. जो डिफरेंस है आपका, जो पैसा मिलने में और एक्चुअल मनी में, दैट डिफरेंस इज नोन एज डेप्रिसिएशन. Depreciation is a non-cash expense. You never pay money to anybody by the name of depreciation. Non-cash खर्चा है बेटा ये. इसको भी हम लेके चलते हैं बिल्कुल. We take this amount in income and expenditure account. Capital expenditure, for example, purchase of land are not considered. See, हमने income and expenditure में हमने revenue income ली, revenue खर्चे लिए, but जो कैपिटल खर्चा है, जो कैपिटल इनकम है, वी डिड नॉट टेक दिस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंड द रीजन इज दैट ऑल दोज कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंसेस दे आर शोन इन द बैलेंस शीट, नॉट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, they are not considered because they will be shown in the balance sheet. The same I told you. Capital incomes or received for example हो गया आपका donation for specific purpose, they are all considered. Donation for specific purpose, they will be written in closing balance sheet liability side. Fund based accounting. अब यहाँ देखिए, समझिए पहले है क्या. फंड्स और उससे जुड़े हुए खर्चे वी ऑलवेज राइट इन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आई गेट स्पेसिफिक फंड्स. सो जो खर्चे कनेक्टेड होंगे, जो इनकम कनेक्टेड होगी विद दैट स्पेशल फंड, दैट विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. उसके खर्चे फंड के और उस फंड से जुड़ी हुई इनकम को डील करना इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग. फंड्स मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. फंड्स आर ऑलवेज गिवन टू यू इन फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस. Fund amount along with the income earned of the fund cannot be used for the purpose other than those for which it is received or set aside. देखिए, उस पैसे को आपने जिस भी नाम से रखा है उस ही नाम से आप उस पैसे को खर्चा कर सकते हो. You cannot spend that money according to your necessity. भाई फंड में पैसा पड़ा है, मुझे जरूरत है, यू कैन नॉट टच इवन अ सिंगल पेनी. वट एवर आर द फंड्स रिसीव्ड फॉर विच एवर द रीजन, द मनी विल बी स्पेंट ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन. फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसिप्ट्स ऑफ डोनेशंस एंड इनकम्स relating to a particular funds are credited to respective funds and payments and expenses they are debited. Accounting when done on this place is known as fund based account. Examples of such funds are building fund, library fund, sports fund, prizes funds, etc. And now see, this is the question. फंड बेस्ड है, बिल्कुल फंड बेस्ड है. आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन. सी, बिल्डिंग फंड इज गिवन टू यू आफ्टर रिसीविंग दैट फंड. डोनेशन आपको रिसीव हुई है, खर्चा भी आपने किया है. WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस. इट मीन्स कि काम हमारा अभी पूरा हुआ नहीं है, काम होना बाकी है. पर जितने रुपए का हो गया दैट इज 22,50,000.
सेकेंड केस देखिए, टूर्नामेंट फंड आपको मिला 15,000 का, डोनेशन रिसीव हुई 25,000 की, टूर्नामेंट के खर्चे हैं 42,000, और ये देखिए इनकम है ना, पार्ट नंबर 2 में इनकम है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 35,000 की इनकम है, दैट विल बी एडेड। लाइफ मेंबरशिप फीस आपको गिवन है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर गिवन है, और उसके बाद डिनर का उन्होंने खर्चा दे दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर डिनर, दिस इज द मनी 10,000। कैपिटल फंड आपको दे दिया 25 लाख का। नाउ लिसन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड्स एंड कनेक्टेड एक्सपेंसेस, फंड्स एंड कनेक्टेड इनकम, दे आर रिटर्न इन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज। अगर आपको मान लीजिए कि आपको फंड्स मिले कम, एक्सपेंस हो गया ज्यादा, इन दैट केस व्हाट विल यू डू, वट एवर अमाउंट कैन बी सेटल्ड, उस अमाउंट को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में सेटल करेंगे। जो अमाउंट सेटल नहीं हो पा रहा, दैट अमाउंट विल बी रिटर्न इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। नाउ सी, केस नंबर 1 था हमारा 25 लाख का बिल्डिंग फंड, देखिए उसके बाद में बिल्डिंग फंड आपके पास में था इटसेल्फ, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड 20, इट इज 22 लाख 50,000 हो, 25 लाख का टोटल था ओपनिंग बैलेंस। आफ्टर दैट खर्चा आपने कर दिया 22 लाख 50,000, 40,000 आपके पास में बचा, और टोटल पैसा हो गया। एंड वन मोर थिंग कि लाइफ मेंबरशिप फीस भी रिसीव हुई है आपको, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी कैपिटल फंड का हिस्सा है। ओपनिंग पैसा आपने लिया, जो पैसा ट्रांसफर हुआ था बिल्डिंग फंड के लिए वो आपने लिया, और आपने ले लिया टोटल पैसा लाइफ मेंबरशिप फीस का, दे आर द पार्ट ऑफ कैपिटल फंड 47,90,000। और वहां देखिए उसमें लायबिलिटी एसेट साइड में देखिए वर्क इन प्रोग्रेस है 22,50,000 का, बिल्कुल उतने की एसेट मिल बन के तैयार हो गई है। दोबारा देखिए, बिल्डिंग फंड इट इज ऑफ 10 लाख, डोनेशन रिसीव हुई है 25 लाख की, ओपनिंग बैलेंस था ये आपके पास में। आफ्टर दैट बिल्डिंग फंड का पैसा जुड़ा, लाइफ मेंबरशिप फीस का पैसा जुड़ा, ये सारा मिलकर के इट इज कैपिटल फंड। और जो हमने WI पे लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी तो एसेट है, जो जितना सामान बन के तैयार हो गया, जितनी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, दैट इज एसेट, दैट इज रिटन ऑन एसेट्स साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर 10,000 रुपीज, ये बिल्कुल आपके चले जाएंगे एसेट्स में। अब एक बार बिल्डिंग फंड देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था, बिल्कुल था, बुक में गिवन है, आपके क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर दैट 25 लाख का आपको डोनेशन मिल गया, ये हो गया 35 लाख। आफ्टर दैट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड का मतलब है जितना WIP हो गया वो माइनस कर दीजिए, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कैसे भी समझ लीजिए बात को। 22,50,000 हमारा माइनस हो गया, बिल्डिंग फंड के नाम का 12,50,000 रह गया। अब टूर्नामेंट फंड को देखिए जरा सी, ओपनिंग बैलेंस आपका 15,000 था, बिल्कुल था 15,000। आफ्टर दैट डोनेशन आपको रिसीव हुई है, इट इज ऑफ 25,000, डोनेशन रिसीव्ड जो हुआ है 25,000 की हुई है बिल्कुल। आफ्टर दैट टिकट को जो सेल करके पैसा मिला 35,000, टोटल 75,000 हो गया। टूर्नामेंट के खर्चे जितने थे वो माइनस हो गए, इट इज 30,000। सब्सक्रिप्शंस फॉर एनुअल डिनर 60,000 था, 10,000 आपको और मिला, 70,000 हो गया। अब देखिए इसमें से 10,000 आपका एसेट्स में लिखा है, वो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।